मेरा अपना मानना है कि एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल वी शुड बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि कंपनी, डिपार्टमेंट, लाइन ऑफ बिजनेस, उनका क्या तरीका है। बिकॉज इवेंचुअली इररिस्पेक्टिव वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है या इनडायरेक्ट, वी आर सर्विंग टू अ लाइन ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा कड़वा सच है पर प्रैक्टिकल है कि आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि मुझे अगले 25 साल प्रोक्योरमेंट में रहना है और मुझे प्रोक्योरमेंट करना है, तो wherever I am 200% aligned with the organization goal and vice versa, I should stick to that. Otherwise, Okay, so Rajat, if you can just briefly share about yourself, your professional journey, and then we pick the negotiation part and oh, sure. other key So questions. see, I done my graduation in 2003, and then for 2 years I concluded my post graduation in finance. And then during my last year of MBA, my brother's friend, a close friend of his, was in supply chain. He was taking care of procurement for Hutch, which is now earlier Vodafone and now Idea Vodafone. Right. So from there, I came across about this domain and about this particular space, that here is a supply chain, and within supply chain there is a procurement, where there would be a team and there would be a individual contributor who would be taking care of the procurement for the organization. So this is something which has fascinated me that time, and वहां से मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग आई वांट टू परस्यू माय करियर विद। और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। देन like in my last year of my post graduation, I started looking out for the opportunities which are related to supply chain, Okay. right? And specifically to procurement. Okay. So luckily it was a manifestation or what, but I cracked the interview with Wipro at that time, and that was for their one of their clients, Celestica, who was taking care of the supply chain globally, and they offshore their work to Wipro, Okay. and we were taking care of their complete end-to-end supply chain. And in that time, like 2005, to be honest, like it's not like now where Mm. complete organization can offshore their work in and out, right? Okay. That time it was starting of this kind of work in a KP or a BPO setup. Okay. So I enjoyed that particular work where I got a fair deal of idea that okay, overall how the supply chain is working, especially on the international ground, right? Because they are they are doing it for a longer period of time as compared to India, Right. right? So they were organized, and so that ways it was a good learning experience. But with time, like I spent almost 2 years with that kind of work, and I realized that I need to go back to a domestic procurement, because eventually वहां पे जो एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद वो बहुत ही रिपीटेटिव हो गया था कि हमारे से ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, और फिर की डिसीजन मेकिंग एट दैट टाइम 20 years back, they used to keep them keep it with themselves, right? Okay. तो वो Okay. एक की थिंग थी जो मुझे लगा कि, और I was constantly in touch by my brother's friend who was taking procurement with Hutch. So Okay. he said that okay, you got the first blood, so now it's time to give yourself more exposure. So I came to the domestic thing, and then for good almost 15 years I had done hardcore domestic procurement, and that too an indirect procurement in in the organization where I was supporting the support functions, where I Okay. was taking care of the IT, admin, HR, procurement. So I switched to almost like three organization in this particular time. And then like I started from scratch from in the domestic procurement, and then eventually now I am heading a procurement with an organization operating from Delhi NCR. Okay. And also like from last 4 years I'm taking care of their
global operations as well. So right now, as a procurement head, primarily I'm taking care of my domestic team and then ensuring the smooth operations for my domestic work, and also contributing on the transactions which are related to our organization from Europe and Middle East. So Nice. that's the thing. But the thought behind uh, starting my journey in procurement has been, uh, to be honest, a satisfactory Mm, experience, right? Because the kind of profile procurement gives within supply chain, uh, it is quite rewarding in terms of you as a person grow, right? Because we start our journey as an individual contributor where we are only focused on the tasks which are assigned to us, mm, right? But eventually we go to a middle management role right. where we are handling, let's say, a team of 1 or 2 people, and then accountable to key transaction, and then accountable to the management. And then as we grow, then if we are heading a department, then it's a different ballgame where key stakeholders would be our management, and key suppliers also are key stakeholder. And then our team is something we have to ensure that eventually Mm. work should stay smooth, and there should not be an escalations. So procurement, I like this is in my blood. Like I'm quite passionate about procurement. So so that's been a journey. I can confirm that because whenever I speak to you, you speak very passionately about procurement, and that is why I think this topic of negotiation will be a fun journey talking to you. Why, how it is, why it is so important. So because you talk Absolutely, about procurement with so absolutely. much passion, so thanks a lot. So actually, um, just before we get into details of negotiations, I think for anyone who just wants to understand what basically negotiation is, like why procurement people or even anyone supply chain, they talk about negotiation with so much emphasis. So maybe what basically it is, and then we get To be into. honest, like although we associate negotiation with procurement and a sales profession, right? But if we if we think like negotiation एक ऐसी चीज है जो कि हमारे साथ when we start communicating, it start from there, right? Yes, From even from our childhood कि अगर हमें if we have to watch a TV, a 5 year kid want to watch a TV for a longer duration, right. he would be negotiating with his parents कि अच्छा मैं अपना होमवर्क इतने टाइम में कर लूंगा, ये हो जाएगा. So it's a skill which can be developed, और उसका एक अपना ग्राफ रहता है. मतलब इट्स नॉट के फ्रॉम डे वन यू वुड बी अ गुड नेगोशिएटर. उसका एक अपना ग्राफ है. इवन इन माय 20 year ऑफ देयर हैज बीन अ टाइम कि जहाँ पे कुछ गलतियां हुई. देयर वर things which were not going right. So Mm, it's a journey. Like negotiation is a skill which can be acquired, which can be developed. Like right now, there are a lot of avenues where we can, even available on social media. At least we get an exposure about it, right? कि ये term क्या है, कैसे काम करती है. But in our time, like it was not there. But yes, negotiation is simple term where कि जहाँ पे भी हमें दो लोग communicate कर रहे हैं, and if we want to get our thing done, uh, then this come into the picture, right? yeah, In our case, when we are dealing with a supplier, then it's a clear cut thing that he want, let's say if it is a simple price thing, he want to sell it with a little more margin. We want to procure it with a little less amount, right? So in a simple term, this is the thing. But eventually it's a skill which with time anyone um, can acquire. right. There is no rocket science to it. It's a simple, like the the way we communicate and our body language and the way we uh, present our case is something which we do day in day out. We negotiate with our parents, with our friends, with our family, with our Yes, loved ones. So it's a very day to day thing. It's just that in our thing we sometimes overburden ourselves. Otherwise, it's a simple thing. correct.
Correct. So I will pick the last part of what you explained on negotiation. So are there any negotiation types as well or styles as step to just break it down further? What type of frameworks are used? How the negotiations are being done in the industry? So are there any styles or like how it works, the negotiation types and all? See, negotiation, according to me, in a corporate environment, right? The structure which we work, like there is an organization and there is a procurement team, and there are requirement from line of businesses, and now there are suppliers who would meet that requirement, right? So Mm. in that structure, what I think is like there are key variables which create a lot of impact in a negotiation style, Okay. right? Because eventually it will drill down to an individual. Ki, who am I and how I am taking that forward, right? Okay. Let's say take an example of somebody who is extremely introvert, right? And he's a kind of person who like to uh, who does not like to talk much, but still if he's in procurement, it's not the case that he will not do good. Right. He can do great because eventually once you step into the office, right, then there is a designation, there is a position attached to it, and as a buyer, you know that eventually you have to be in a driving seat to Mm. drive that particular transactions negotiation and eventually drive a best possible outcome for the organization, Okay. right? So that's the role. So once we are in that role, we know what needs to be done, right? So the style of negotiation will depend. To start with, it's about the individual, right? What kind of personality I am as an individual, right? Okay. One could be a highly competitive or assertive type of personality, where Mm. for him it would be only win lose, right? He's Okay. the kind of personality who think, okay, irrespective of the amount, irrespective of the transaction, irrespective of the other variables, here is the transaction. I have to bring the best value to my company. आई नो कि वो एक अंडरलाइन फैक्ट हमेशा ही रहेगा, हर ट्रांजेक्शन में रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, पर फिर भी इट्स अ पर्सनैलिटी टाइप दैट दे लाइक टू डोमिनेट एंड इवेंचुअली जिस तरह का एक एक सेटअप बनता है जिसमें कि एक बायर है एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ टाइम उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? Mm. 80 to 90% टाइम वो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि if there is a service or a product need to be brought, then I'm sure कि उसकी apple to apple comparison available है. There are multiple suppliers available. So eventually by virtue of the design of the procurement thing, he is in a driving seat and he knows कि he has the options and he has to choose the best one. So वहां पे अगर एज अ इंडिविजुअल आप हो बहुत एग्रेसिव और असर्टिव Mm. पर्सनैलिटी, तो यू विल इंश्योर के इट कुड बी अ विन लूज, आई डोंट माइंड, बट आई वांट टू इंश्योर के वो मेरे ही टर्म्स पे क्लोज हो, राइट? Okay. इसके अलावा देयर कुड बी अ सिनेरियो वेयर as a personality, if somebody is a quite analytical and data driven, right, then even I have observed, like, even during gathering the requirement, Yes. a procurement guy can pissed off a line of business, right? Mm. Because he is so detailed oriented that he know he require in and out of about the require about the that particular transaction, that sometimes line of business may feel that okay, this much is not required for that particular transaction. तो ऐसा भी होता. तो as an individual, these things, the personality traits plays an important role, right? Mm. Although to be honest, according to me, वो transaction driven होना चाहिए कि Okay. there would be, let's say, 3 transaction in your kitty, और आपको पता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो practically it's a, let's say, if you want to procure a laptop for the organization, right? Let's say 1,000 laptops are required.
and there is a specific specification जो कि हमें procure करना है. Right. तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि 3-4 पैरामीटर पे अगर टिक लगता है, हाँ जी. यानी कि अगर your line of business, your IT team gives you a free hand कि there is an HP, there is a Lenovo, Hmm. there is a Dell. Now you can procure from anybody. That's the one tick. Here is the fixed configuration which is available from all three of them. Second tick. अगर ये दो टिक लगते हैं उसके बाद now it's a matter of only the pricing thing, right? And also अगर वो free hand है कि there is a ample amount of space in terms of delivery timelines, अगर वो भी है, that's an ideal situation in case of a hardware which is available with all three, right? In that case, it would be a plain simple transaction where negotiation style will only driven around or strategized around the pricing. Right. Ki whosoever will get the best price, Hmm. we will go for that, right? But let's say there is an example where hardware change is required, Hmm. which is customized. Customization is the word, right? Okay. So let's say a customization is need to be done in an hardware which let's say out of three only one agrees to, right? Okay. Okay. If he says कि अच्छा ये customization जो आपकी requirement है, हाँ. आपकी टीम को चाहिए, वो मैं कर सकता हूँ, then you have to change your style because now it would be a collaborative thing, right? You know that okay, here is the partner. Let's say HP agrees to that kind of adjustment in their hardware, and they know okay, at factory level they have to communicate, they have to ensure कि उस तरह का हम लोग adjustment करेंगे for the client need. Then you have to change your style, Right. right? And eventually, in this case, line of business or end user, which would be IT in this case, should be uh, aligned as a key stakeholder that they should ensure that whatever we communicate to the partner, Hmm. it should be well communicated internally. Uh, like procurement and IT should be on the same page, right? It's not that IT give away this to the vendor that okay, now this kind of explicit requirement only you are providing, right? Then supplier will be in a driving seat. Right. So wherever there would be a uh, sourcing need where we know that by virtue of the transaction only a particular supplier can meet that requirement, then internal stakeholder management for a procurement professional has take a driving seat, right? Like he has to ensure that he communicate, he although he's a facilitator, there is an IT team who need the who has a requirement and there is a vendor who will provide it, but as a facilitator in that case my role become quite pivotal where I have to ensure that we as an organization speak a same language to the supplier, right? Because ultimately we are going for a goal for the organization that at any given point of time the supplier should be meeting the requirement in a way that it should be win-win for both, right? But we should not lose control just because there were internal communication gaps, Right. right? Okay. So in this case, like the main part is that this internal communication and being on the same page is very important because it's a customized requirement. We have to work with the Absolutely. supplier. So if we will speak the same language, you will not lose the negotiation levers, right? Okay. Absolutely. So what I understood from what you have said, so basically maybe there are two, three types. So you mentioned about aggressiveness and how you want to take care of win or losing. So maybe a competitive approach. Then you talked about collaborative and how to accommodate the requirements. So maybe we will touch base this more in the coming questions. But specifically, if I talk about organizational um, structure. Like now we have so many startups, we have large organization, mid organizations.
So, are there any specific differences how these type of organization approach negotiations, or more or less they follow the same structure what you explained? And if they follow different structures, so what are those like if that is the case? According to me, on a very practical ground, other than individual as a personality, the second most important aspect is organization only. Because if you compare, let's say, an IT sector, and there are three type of uh, organization. One is a startup, one is a mid-size organization, and one is a large cap, right? So there would be a pole apart approach in terms of doing everything, right? Any startup who has just started their business, there the in respect to procurement, उनका decision making हो सकता है बहुत fast हो. They will take quick decision, right? But ultimately, and they would be realistically they would be price sensitive, right? They 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 will the loud and clear message to a procurement guy in that case would be bring whatever we required at a best possible rate, right? And as far as procurement policy is concerned and the approvals are concerned, on very realistic ground, it would be a fast process, right? But there are there would be chances of like any kind of sense of urgency could result in के आप अपना ground work उतना ना करें, right? Or again depending upon the requirement, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का एक लर्निंग कब होगा कि दे वुड बी गोइंग टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, सो प्रोक्योरमेंट में भी उस तरह के मिस्टेक्स या होने के टू बी ऑनेस्ट चांसेस रहते हैं. Um, क्योंकि अगेन अगर आप इसको मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें जिनके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्वालिटी एंड आपका प्राइसिंग का एक डिसेंट बैलेंस रहे, we would give you a decent amount of time to close the requirement. वो एक अलग स्पेस है. और फिर एक मैच्योर मॉडल में अगर आप जाएं, एक आप लार्ज कैप में, लेट्स से इफ आई एम डूइंग procurement for Infosys, then I'm sure के they have their checks and balance in place, right? Their policies are well driven, and as an organization, their expectation from the procurement would be pretty much clear and very specific, right? So इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंस कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं. yeah. और आई नो लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स के उन्होंने अपनी जर्नी में उस चीज को बहुत कैटेगोरिकली ऑब्जर्व किया है कि हाँ ऐसा होता है कि अगर आप एक ही डोमेन में इवेंचुअली अगर ऑर्गेनाइजेशन स्विच करते हैं, दे नो द द दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड. Okay, okay. But is it, do you think like so all these type of organizations, whatever they are following currently, do you think that at their level these things are working out fine considering the current scenario? For example, there might be few things which startups are doing well. Like I think agility is one thing which we can see how the startups are using it very well. Whereas sometimes in the large organizations, it becomes very difficult to change the processes or accommodate new changes. Whereas mid-size organizations, you rightly mentioned, they try to make a good balance of everything because they are closer to both the sides. They are growing, but they are still not that big. So current considering the current scenario, are these organizations size, are they learning from each other or managing things better than what was happening? Absolutely, absolutely. The kind of information available right now, any street smart startup is aware कि what kind of mistake he or she need to avoid, right? As an organization, as a organization leader, uh, uh, they try to incorporate the best practices, right? Because procurement का भी, if you see पिछले 5-7 साल में जो ग्राफ डोमेस्टिक सर्किट में एक चेंज हुआ है, वो इसी वजह से बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, राइट? इट्स अप टू द it's up to the owner that
do he want to see procurement as a cost center Okay. और एज अ प्रॉफिट सेंटर, राइट? सो दोनों में सिर्फ थॉट प्रोसेस का ही फर्क है कि अगर आप कॉस्ट सेंटर की तरह देखेंगे, अच्छा एक डिपार्टमेंट है जिसको हमारे लिए चीजें प्रोक्योर करनी है, और इवन फाइनेंस टीम, द अकाउंट्स पेबल टीम, उनका भी थॉट प्रोसेस आज से एक लंबे टाइम पहले तक सिर्फ यही रहता है कि अच्छा प्रोक्योरमेंट की तरफ से इनवॉइसेस आने हैं जिनको प्रोसेस किया जाना है, एंड दे कंसिडर सम टाइम एज अ फाइनेंशियल लीकेज कि अच्छा यहाँ से सिर्फ खर्चा ही होगा, इट्स एन आउटफ्लो, राइट? बट any organization who treat procurement as a collaborative thing where they they ensure that procurement get the information at a very initial stage, then it's a different ball game altogether, where we as a procurement uh, professionals, we can contribute a lot, and we are doing it right at right now. The things are quite different. It depends although organization to organization, but the way I see that things have changed in last 5 years, and the kind of information now every business leader has, they knew that they have to ensure that procurement should have a say, right? It's not the case that any requirement which comes into the procurement kitty at the 11th hour will eventually spoil the ground for everybody. कि Okay. end user, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, बट मुझे कई बार ऐसा लगा कि फ्राइडे को अगर एक परचेज रिक्वेस्ट रेज की गई है, Right. उसका जब ट्यूसडे फॉलोअप लिया जाता है यूजर डिपार्टमेंट से, या लिया जाता था, तो Yeah. वहां बोला जाता था ये 4 दिन पहले एक आपका परचेज रिक्वेजिशन रेज किया था, उसका अभी स्टेटस क्या है, Yeah. राइट? सो वो जो बीच का वीकेंड है उसको स्किप कर दिया जाता था, तो Mm. वो कहीं ना कहीं अगेन वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, their internal policies, everything matters a lot, Mm. because eventually जो procurement की policy है, if this says that okay this is the TAT, Right. among that this much working days are required to close this kind of transaction, where most of the time procurement policy is designed around the price value of the transaction, Okay. and it do not consider the complexity of the transaction. वहां एक गैप जरूर रहता है कि आपका टैट जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है एज सुन एज पीआर हिट्स यू, इवन इफ इट इज एट 5 PM ऑन फ्राइडे, स्टिल यू हैव टू इंश्योर। सो वहां पे प्रोक्योरमेंट का जो स्किल की हम बात करते हैं, वहां पे आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वंस यू आर 6 मंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने 6 महीने एक कंपनी में काम कर लिया, you know कि who all are the key stakeholders, right? Even at the managerial level where you are at the middle management and you know कि अच्छा मेरी रिपोर्टिंग मेरे procurement head को है, who is 10 year more experienced than me, so you can fall on, or you can look up to that particular uh, uh, that person, but still as an individual, eventually you are doing the day-to-day transactional discussion with the stakeholders. So with time, this is the skill, the people management skill, the man management skill. As a procurement guy, one has to ensure that he learns. His foresightedness should be of a level where अगर उसकी किटी में 5 ट्रांजेक्शन है जो कि वो इंडिविजुअली मैनेज कर रहा है, नाउ ही हिमसेल्फ शुड एबल टू मेक अ जजमेंट कि अच्छा ये 50 लाख का ट्रांजेक्शन है और ये 5 लाख का ट्रांजेक्शन है, पर दोनों में टाइम सेंसिटिव कौन सा है, Mm. दोनों में कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें दे नो द यूजर कि वो किस तरह का पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग के हो सकता है कि 50 लाख के मुकाबले 5 लाख का ट्रांजेक्शन ऐसा हो जो कि इवेंचुअली विल लीड टू एन एस्केलेशन, राइट? जो कि अवॉइड करना ही एक इम्पॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है एक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल के लिए, कि उसको एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में as an individual, after spending a considerable amount of time in that particular organization, he should be aware कि अच्छा मेरे लिए ये ट्रांजेक्शन पे मुझे इतना टाइम देना है, इतनी प्रिपरेशन करनी है,
और वहां पे फिर वो वैल्यू की इंपॉर्टेंस से ज्यादा उस ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी काम आती है, कि वो ही शुड एबल टू गेज एज एन इंडिविजुअल, और वो विद टाइम आता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो विद टाइम यू डेवलप। पर तो ये स्ट्रेटेजिक मतलब आपका जो सोर्सिंग की टैक्ट, जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं या उसके टाइप की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन स्टाइल की बात कर रहे हैं, वो सारे इन सब चीजों से ड्रिल डाउन होते हैं। राइट राइट, मैं वही पूछने वाला था आपसे कि सो दिस दीज थिंग्स become a whole ecosystem and then result into a good negotiation, whether it's with the internal stakeholder or maybe with the external एब्सोल्युटली, stakeholder to do the prioritization. एब्सोल्युटली। Right? Okay, okay. Acha. So picking up from your last point now, so I think there are three, four things which are very important, and most of the times I have seen around the negotiation, these things are very impactful either positively or negatively. So these things like last minute urgency, not having the complete information, then the situation of the market, supply, demand. So how negotiations are impacted in whatever way because of these parameters, and what generally professionals do to tackle this situation. If you can share your views on this part, because this is very relevant. Like I'm sure Yeah. 100% relevant to. See, when we talk about any requirement, there would be practically four scenarios. One, either demand is high, supply is low. Okay. Second would be supply is high, like there is ample amount of supply, but there is no demand. And third would be a stable situation where uh, both buyer and supplier has a breathing space to strategize, right? Fourth would be a volatile situation due to any geopolitical thing, right? So let's take up a very first example where demand is high and supply is low, right? And it's not the history, it's not the past, but during the COVID situation, this has been a case for which has been faced very brutally by every procurement professional, के डिमांड जो थी वो स्काई रॉकेट गई, स्पेशली लेट्स से 2020, वी आर सिटिंग इन अप्रैल एंड नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड कि हमें वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंट करना है, राइट? जहां पे एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 95% अटेंडेंस मंडे टू फ्राइडे ऑफिस आती थी, अब वो 95% ऑडियंस घर से काम करेगी, राइट? तो ऐसे में पहली चीज आपको वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। आई एम श्योर के लेट्स से इट्स एन आईटी कंपनी जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप है, राइट? पर फिर भी जो आपका रेंटल लैपटॉप की रिक्वायरमेंट और वो जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच आया था, Hmm. वो दैट वाज एट द नेक्स्ट लेवल, राइट? कि वहां पे इवन इफ इट इज अ जेन्युइन ऑफ द सप्लायर, वहां पे दे वर इन अ वेरी टाइट सिचुएशन के इरिस्पेक्टिव वो क्लाइंट उनके लिए कितना पुराना है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो डिमांड सप्लाई का मिसमैच ऐसा रहा कि जहाँ पे एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल इट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन कि हमें वो एक पूरा एक एनवायरनमेंट घर से सेटअप करके देना है जहाँ पे नेटवर्क से लेके कनेक्टिविटी से लेके एक एक आपका सिक्योर्ड नेटवर्क देना जो कि कंपनी का है, और आपका एक इवन रेंटल लैपटॉप अरेंज कराना जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में शायद एक सिंपल ट्रांजैक्शन हो सकता है, पर Hmm. यहाँ पे वो एक बहुत ही जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई हिला, वो एक अलग लेवल पे चला गया, Hmm. राइट? तो ये एक एग्जांपल हुआ जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। इन जनरल जो सेकंड और थर्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स वो नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन है जहाँ पे वी नो कि अच्छा एक टाइम बाउंड रिक्वायरमेंट आई है जिसके तीन सप्लायर हैं जो कि वो रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, एंड वी हैव अ बजट एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एंड वो एक टिपिकल सिनारियो रहा। अब ऐसे ही अगर आप इसी को जियोग्राफिकल
जो भी सप्लाई चेन में दिक्कत उस दौरान से ही आई थिंक शुरू हुई थी सेमीकंडक्टर हम्म। को लेके, राइट। वो भी आई बिलीव कोविड के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन ब्रेक हुई वहां से शुरू हुई, और वो आई थिंक it lasted for good 3 years for the automotive industry and somebody who is in to the electronics. For them it was a nightmare कि semiconductor की shortage means the demand went sky rocket, और कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट और उस सप्लाई चेन को रिस्टोर करने में ही काफी टाइम लग गया। हम्म। सो दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि जहाँ पे ऐसा हुआ है इन पास्ट। और for us as a procurement professionals we have to ensure कि हम लोग प्रिपेयर रहें, जहाँ पे अगेन ऑर्गेनाइजेशन, देयर वर्क एथिक्स, देयर लाइन ऑफ बिजनेस, इनका ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हम्म। राइट। कि अगर एक आईटी फोर्स ही कर रहा है कि लेट से एक मिड साइज आईटी कंपनी है जिसको सेल्स ने एक प्रोजेक्शन दिया है कि हमारे पास एक लेट से 600 कैपेसिटी का एफटी का एक काम आने वाला है, तो हम्म। वहां पे एक वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू हो जाए कि अच्छा नाउ वी नीड अ स्पेस एडिशनल, तो ओके वी विल कनेक्ट एडमिन टीम ऑन टाइम, राइट। अगर यहाँ पे हमें एडिशनल हार्डवेयर चाहिए तो वी शुड कनेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑन टाइम, राइट। और एडमिन का काम भी इनडायरेक्टली फिर वो डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट के पास ही आएगा कि एडिशनल स्पेस होगा तो either procurement team will ensure that they bring in the consultant who provide the additional space, right। तो वहां पे प्रोक्योरमेंट का काम तो इन एनी विच वे भी इंडिस्पेंसिबल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये बात जितना जल्दी और जितना अर्ली स्टेज पे समझ जाती है कि प्रोक्योरमेंट को हम एज अ प्रॉफिट सेंटर यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें उन तक इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचानी पड़ेगी। अगर हमें उन्हें कॉस्ट सेंटर ही ट्रीट करना है तो इट डजेंट मैटर। तो वो फिर अगेन आई हैव मेट लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स, तो वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी रही है कि कंपनी का डाउन टॉप टू बॉटम अप्रोच का पूरा पूरा इम्पैक्ट हमारी नेगोशिएशन स्टाइल, हम्म। हमारी नेगोशिएशन टेक्निक्स पर लगता है। क्योंकि हम्म। एज ए इंडिविजुअल हमें वो ट्रांजेक्शन कब आया है, क्या उसके लिए हमें टाइम दिया गया है। हम्म। एक ही ट्रांजैक्शन में अगर आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दें और उसको टाइम सेंसिटिव बना दें, तो वी लूज द नेगोशिएशन पावर। एंड सप्लायर्स आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। वी एज अ प्रोक्योरमेंट गाय डे टू डे वी नो दैट ओके सप्लायर इज अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, हम्म। राइट। ही नोज के इस ट्रांजैक्शन में मैं कितना इंडिस्पेंसिबल हूँ, क्या मेरे अलावा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये एक सप्लायर को हमेशा से पता होता, राइट। तो irrespective any transaction which is only cost driven, they knew okay this much effort is required and ultimately as an organization this much discounting we can offer, so हम्म। they take the transaction in that way. But I'm sure there would be few transactions where as an organization they are aware that they are indispensable, they are market leaders, they are हम्म। the single source for that particular requirement, so they position themselves accordingly, right। so मेरा मानना या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एज अ प्रोक्योरमेंट गाय वी शुड एज एन इंडिविजुअल शुड बी अवेयर ऑफ दीज वेरिएबल्स, ओके। जिनको कई बार नजरअंदाज करना हमें एज ए इंडिविजुअल बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है। जहां पे हम एक ट्रांजेक्शन को ऑफिस की बाउंड्री से बाहर ले जाते हैं, ड्राइव करते हुए घर जाते हुए ले जाते हैं और घर पहुंच के भी ले जाते हैं, राइट। सो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो विद टाइम अगेन तभी नेगोशिएशन अपने आप में एक स्किल है जिसको विद टाइम वी डेवलप एंड विद एक्सपीरियंस वी गेन दैट काइंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद आवर ओन विजडम के उसको हमें किस तरह ट्रीट करना है। तो लेट्स से somebody who is highly analytical, हम्म। राइट, जिसको हर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी पूरी तरह समझनी है और फिर उसका क्लोजर भी सप्लायर से पूरी तरह समझना है, हम्म। इस तरह की पर्सनैलिटी अगर उसको फिट इन कर दिया जाए स्टार्टअप में, तो शायद वो विद टाइम एग्जॉस्ट हो जाए और सफोकेट हो जाए, राइट।
But imagine this kind of personality if we can put in a very matured setup, let's say Infosys, TCS or HCL, where they have their own graph और उनको पता है कि they they know कि there is a procurement policy and we will abide that. So वहां शायद उसी तरह की पर्सनालिटी आउटशाइन करे जो कि डिटेल्ड ओरिएंटेड है और अपने हर ट्रांजैक्शन में उतनी ड्यू डिलिजेंस की कैपेबल भी है और उतना वो अपने आप को इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं. तो शायद अगेन सारी चीजें कनेक्टेड है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट एग्जैक्टली यू आर एज एन इंडिविजुअल, वेयर आर यू, इन विच ऑर्गेनाइजेशन, उसका बहुत इम्पैक्ट है. कई बार हम आपस में इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं कि जहाँ पे हम लोग शायद मंडे टू फ्राइडे के बाद जब वीकेंड आता है तो शायद अपने आप को उतना ज्यादा एग्जॉस्टेड पाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल की we don't find ourselves doing justice to either our career or what we are doing, right? Or again, as an individual, we are doing like every transaction is a monetary driven, right? कि आपका वो transaction uh, against a service or a hardware, you are paying something to the to the supplier, right? So बहुत grassroots level पे बहुत subconscious level पे आप how what is your relationship with money is also important कि what do you think, right? Imagine a very practical scenario where you stepped out of office after concluding a 50 lakh rupee transaction, but on personal front you stepped out with your, let's say, wife to conclude a 20,000 rupee, let's say, a small thing for household, but you are so invested and exhausted in your office work. On personal front sometimes you are so exhausted that you say कि अच्छा यार जितने का मिल रहा है लो, राइट. Right. और वहां पे मैंने देखा है कि वो पर्सनल फ्रंट पे आपको एक एक लेवल का डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने कहीं ना कहीं हम क्या डिफरेंस है जो जो वहां काम कर रहा है यहाँ नहीं कर रहा है. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो ऐसे में यू हैव टू एक्नॉलेज कि अच्छा वो पोजीशन, वो आपको अथॉरिटी और जो आपको इकोसिस्टम एक तैयार करके दिया गया उसका इम्पैक्ट है. और उसको आप ना अंडर प्ले करें ना ओवर प्ले करें, ना अपने पे हावी होने दें एज एन प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल, ना उसको ज्यादा मतलब यू हैव टू इंश्योर कि वो मेरिट बेसिस पे यू आर डूइंग इट. अदरवाइज आई हैव सीन के 10 year डाउन द लाइन इन प्रोक्योरमेंट समहाउ यू वुड बी इन अ स्पेस जहाँ पे यू वुड नॉट एबल टू adjust to what you are doing. So Okay. as an individual we should be understand कि अच्छा यार is it aligned to what my personality type is, where I am. क्योंकि शायद पर्सनालिटी टाइप तो फिर एक बार को आप सारी चीजों से अलाइन कर सकते हो कि इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यू नो कि अच्छा ये काम है, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, यहाँ पे आपको एक तरह का प्रोजेक्शन देना. पर अगर आप उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं हो तो वो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि फिर इट्स योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मूव आउट करें जो कि आपके हाथ की चीज है और आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहां पे आपके एफर्ट्स के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देयर वुड बी एन अलाइनमेंट जो कि आपको एक वर्क सेटिस्फेक्शन दे. Okay. तो Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको शायद विद टाइम हम लोग उतना समझ नहीं पाते हैं या बहुत टाइम लगता है एक्नॉलेज करने में कि वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग. तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी नेगोशिएशन Hmm. स्किल्स से लेकर नेगोशिएशन का जो तरीका रहेगा वो सारी चीजों पे इम्पैक्ट करता है. आपने एक्चुअली इतना सही पर्सपेक्टिव दिया है जो आपने ऑफिस से निकलकर you are getting into a situation of personal friend because I'm sure this must have happened with everyone, either from procurement because it has happened with me. The same situation. Sometimes you feel so exhausted that I don't want to negotiate. Okay, give me this. Okay, okay, I'm okay with this. मतलब छोटा सा घर का काम है. I know कि I can do some negotiation. I will not do it because I have done some negotiation at office and it was so exhausting. So it's a good perspective to understand the ecosystem. Like
जो आप काफी डिटेल में बता रहे हैं ना कि नेगोशिएशन इज मोर अबाउट द इकोसिस्टम, इट्स नॉट जस्ट वन टास्क, ecosystem, your Yeah. knowledge and how you will deliver in different situations. So इसको ना थोड़ा रजन मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर सिंपल मतलब समझने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेशली फॉर दोज पीपल who do not have that much experience in the industry, like maybe 3 4 5 years, because what you are saying, maybe people with higher experience can relate better, but just to simplify it, maybe we can take some example, अगर आप कोई अच्छा example दे सकते हो जिसमें different situations में negotiations कैसे workout कर सकती थी, maybe any example, and कैसे buyer उसको अच्छे से handle कर सकता है different style के साथ, या कैसे, तो maybe it can help, just any example if you can give. ये उसमें यही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो भी अभी अगर किसी ने करियर स्टार्ट किया, Right. he's I'm sure in a supply chain, in a procurement, he would be starting his career as an individual contributor, Hmm. जहां पे उसके पास एक ट्रांजैक्शन आएगा और उसको कहीं ना कहीं उस ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करना एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और एक 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 जो भी उसके प्रोटोकॉल रहेंगे, तो अगेन उसमें प्रैक्टिकलिटी यही रहेगी कि आफ्टर लिसनिंग टू आर कम्युनिकेशन, कि जो भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं वहां पे अगर इसको सुनने के बाद Hmm. जब वो वापस ऑफिस जाता है और वो ट्रांजैक्शन को इवेल्युएट करता है, तो वहां पे उसको मेरिट बेसिस पे देखे कि वो ट्रांजैक्शन में कितना टाइम उसे मिला है। अब इमेजिन के यहाँ पे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द स्क्रैच, कि अगर आपका लेट्स से विद इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चरली इट्स वो सबके लिए सेम है, पर एक एडमिन डिपार्टमेंट हेड है और आईटी डिपार्टमेंट हेड है, दोनों की पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है कि एक है जिसको हर ट्रांजैक्शन में सेंस ऑफ अर्जेंसी है, Hmm. एक है जो कि कहीं ना कहीं आपकी उस थॉट प्रोसेस से अलाइंड है कि ही रिस्पेक्ट योर वर्क एंड ही इंश्योर कि आपके पास उतना टाइम एक ट्रांजैक्शन के लिए मिले जितना जरूरी है। तो वहां पे अब के बाद एटलीस्ट उन 5 ट्रांजैक्शन जो भी इस वक्त के किटी में है और आपको इंडिविजुअली डिलीवर करने हैं, वहां उतना सेग्रीगेशन रहे कि किस ट्रांजैक्शन में मुझे कितना एफर्ट देना है, और उसका इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लाइन ऑफ बिजनेस के लिए क्या रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, कि इमेजिन के आपको एडमिन के लिए हाउसकीपिंग सर्विसेज लेनी है और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेनी है, और लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप करानी है जिसका जिस जो कि इन हाउस डेवलप होगी, और एक आप एप्लीकेशन डेवलपर को ऑनबोर्ड करेंगे जिसका काम एक ऐसी इन हाउस एप्लीकेशन डेवलप करना है जो एम्प्लॉयज का पंच इन पंच आउट करे, अटेंडेंस मार्क करे। राइट, 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट और डिपार्टमेंट सेम है। अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिसका एम्प्लॉय का हेल्थ एंड सेफ्टी से बहुत सीधा सीधा कनेक्शन है, Hmm. और अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि Hmm. उनके लिए इरिस्पेक्टिव वो एक स्टार्टअप है, एक मिड साइज है, या एक मैच्योर्ड कंपनी है, अगर उनके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रायोरिटी है, Hmm. सो while bringing a supplier on board you have to ensure कि वो पैरामीटर टॉप प्रायोरिटी पे रहे, जिसमें कि कॉस्टिंग एक बार को हो सकता है बैकसीट ले ले, Hmm. पर आपके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप वैल्यूज में आती है, आपको टॉप टू बॉटम वो कम्युनिकेटेड है थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू एडमिन, तो फिर यू हैव टू डिजाइन योर ट्रांजेक्शन इन अ वे कि आउट ऑफ 3, इफ L2 supplier is bringing value to this particular aspect, then you will, with a collaborative effort with your admin team, you will ensure कि you will bring that guy. Hmm. Right, now the housekeeping part, where somebody who is completely in your organization, right, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट पार्ट बन जाता है, जिसको डे इन डे आउट अगर ऑलमोस्ट 25 लोगों की हाउसकीपिंग टीम है जो कि आपके ऑफिस में सर्विसेज दे रही है, तो वो इंडिविजुअल जो आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज के साथ 10 घंटे कोट एंड कोट रहेगा,
वहां पे उसका उसका एथिकल होना, उसका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत मैटर करेगा, राइट? राइट। तो अगेन कमिंग बैक टू सेम ऑर्गेनाइजेशनल थिंग, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीटी मच अलाइंड कि नहीं यार मुझे cost is, let's say in this case, take an example, they are cost sensitive, right? So now your negotiation would be of a different style, where you will bring in three suppliers. You will say, okay, here are 20 resources which would be working on my roles, and then this would be the minimum wages thing, and whatever the contractual term, then eventually it will drill down to costing. ठीक है कि मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये एग्जिट क्लॉज होंगे, ये आपका टर्म्स रहेंगी। तो अगर कंपनी कॉस्ट सेंसिटिव है तो एकदम से आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ उन 3 सप्लायर में जो भी L1 रहेगा, जो भी कॉस्टिंग ठीक देगा, उस तरफ जाएगा, हम्म। राइट? तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एज ए इंडिविजुअल आपको हर ट्रांजेक्शन में ये 2-3 वेरिएबल को मान के चलना ही है, कि उनको इनकॉर्पोरेट किए बगैर आप ट्रांजेक्शन का पेस डिसाइड नहीं कर सकते, कि हम्म। मुझे कितना जल्दी करना है और कितना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, टू बी ऑनेस्ट, और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखी, और जिनसे मेरा मिलना होता है वो भी यही बताते हैं कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट हेड को ज्यादा उन लोगों ने अथॉरिटी दी हुई है। प्रोक्योरमेंट का रोल कमर्शियल और सिर्फ कमर्शियल के लिए आता है, हम्म। पर मेनली लेट्स से ऑपरेशनली अगर वेटेज उन्होंने अपने ओवरऑल पैकेजिंग में कमर्शियल में ज्यादा दे रखी है, तो वट एवर एडमिन वुड बी कंफर्टेबल विद, जो कि एक बहुत ही ग्रे एरिया आता है, कि जहाँ पे शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि एक कमर्शियल पर्सन कई बार सफोकेट भी हो जाता है, कई बार डिस्कम्फर्ट में भी आता है, कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का अपर हैंड है, और इफ दे वांट कि अच्छा L2 सप्लायर आएगा एंड दे हैव अ जस्टिफिकेशन, एंड अगेन you know your procurement policy well, if there is a scope of expect exception, then it has to be documented as per the policy. Then you should be this much thick skin enough कि आपको वो पता हो कि ठीक है, मेरा पॉलिसी अडहर हो रहा है, हम्म। मेरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो रहा है, आई हैव टू गो बाय द मेरिट के 10 में से, टू बी ऑनेस्ट, 2 या 3 ट्रांजेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आते हैं हाँ। जो कि इस तरीके से ही क्लोज होने। तो वहां पर ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड यू हैव टू इंश्योर कि ठीक है, यू विल पुट द फ्रेमवर्क इन अ वे कि आपका उतना टाइम में आप उस ट्रांजेक्शन को क्लोज करें, जहां पे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रहे कि एडमिन का कंफर्ट रहा, इस वजह से हाउसकीपिंग सप्लायर आया, और ये कॉस्टिंग के पैरामीटर थे जिनको इवेल्युएट किया गया और क्लोजर हुआ, राइट? अब जो थर्ड एग्जांपल था कि आपको एक टूल बनाना है जो कि आपका अपना प्रॉपर्टी कहा जाएगा, और आप एक एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी को ऑनबोर्ड करते हैं, उस तरह के ट्रांजेक्शन में टू बी ऑनेस्ट जो अप्रोच रहती है वहां ये प्रैक्टिकली ये रहती है कि जब तक 3 सप्लायर इवेल्युएट हुए और तीनों में से जिसको इवेंचुअल कमर्शियल गो हेड दिया गया, तब तक आपकी अप्रोच शायद रह सकती है कि आप कहीं ना कहीं तीनों को अपनी बुक्स में एक ही लेवल पे इवेल्युएट करें। हम्म। पर जहां पे आपको यूजर डिपार्टमेंट से एक से आता है कि अच्छा, आउट ऑफ दीज थ्री दिस इज द सप्लायर विच वी इवेंचुअली वांट टू गो अहेड, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज ही हैज अ सुपीरियर कैपेबिलिटीज एंड ही इज मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट वेल। तो वहां पर आपको अपने आप उस नेगोशिएशन, उस क्लोजर का स्ट्रक्चर इन योर हैंड, आप आपके अपने हेड में थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि ठीक है, माय बॉडी लैंग्वेज टू द सप्लायर वुड बी कि ठीक है, यू आर वन ऑफ द ऑप्शन। हम्म। बट अगेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अगर एडमिन की तरफ से एक थॉट प्रोसेस गया जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, कि अगर 2 सिनेरियो होंगे, इधर दे विल गिव अ थॉट प्रोसेस दैट यू आर द ओनली वन, हम्म। एंड प्रोक्योरमेंट फिर उसको उसी हिसाब से डील करेगा कि ठीक है, वी हैव टू कंक्लूड द कॉस्टिंग, जो भी कॉस्टिंग आए। पर एक सिनेरियो जहां पे एडमिन इज प्रीटी मच अलाइन टू यू,
जहां पे एंड तक सप्लायर को वो कंफर्ट नहीं है कि दे आर दी ओनली वन, तो वो फिर अपने आप में सारा कुछ उसमें चेंज हो जाता है। तो हम्म मेरा अपना मानना है कि एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल वी शुड बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि कंपनी, डिपार्टमेंट, लाइन ऑफ बिजनेस, उनका क्या तरीका है। बिकॉज इवेंचुअली irrespective वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है या इनडायरेक्ट, वी आर सर्विंग टू अ लाइन ऑफ बिजनेस, हम्म राइट। तो वहां पे उनका ऑपरेशन स्मूथली रन करना इज द इम्पोर्टेंट केपीआई एंड केआरए फॉर अस। हम्म तो वहां पे वी हैव टू सी। तो ऐसे में इवेंचुअली इट्स नॉट द केस कि हम लोग एक ही रोल में पिछले 3 साल से हैं और क्रिप कर रहे हैं कि यार कंपनी अलाइन नहीं हो रही। तो इट्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की वी शुड चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि कई लोग कई समय निकाल देते हैं कि अच्छा यार बैठे हैं और क्रिप कर रहे हैं, तो फिर यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, हम्म नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज इट्स नॉट कि आपके थॉट प्रोसेस से कंपनी एक दिन अलाइन होगी और वो उतनी कॉस्ट सेंसिटिव या टाइम सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये बहुत थोड़ा सा कड़वा सच है पर प्रैक्टिकल है कि आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि मुझे अगले 25 साल प्रोक्योरमेंट में रहना है और मुझे प्रोक्योरमेंट करना है। तो wherever I am 200% aligned with the organization goal and vice versa, I should stick to that. Otherwise, everybody is open to move and switch either the industry or the domain. So that's an individual call. ओके। सो जैसे आपने एग्जांपल में शुरू किया था कि इफ समवन इज न्यू इन दिस एरिया और प्रोफाइल लाइक सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो इस दिस इज हाउ दे दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड द सिनारियोज and try to simplify it and see how the negotiations can be done, understanding the line of business, what are the expectations, operation first approach, which you mentioned, that operation should run smoothly. So this is something which a person who is not expert in the industry, like does not have a experience like more than 10-20 years, can start from understand the stakeholders well, the requirement well, and then see whether it's on merit basis or you have to deal with the single supplier, where the first thing you mentioned will come into picture, the style of negotiation, whether it is collaborative or competitive or maybe accommodative, like you just have to accommodate. There is no other Yeah. uh, situation in this case. Okay, just last part of our discussion, where which I generally ask every guest, whatever topic we discuss. Um, if you have to share, what are the top 2 or 3 skills which are must have to become a good negotiator? So, according to you, like what are those skills in our line to become a good negotiator? Maybe you learn it by during your journey, but these are the skills which will help anyone to become a good negotiator. According to me, पूरे डिस्कशन में जिस पे मेरा Hmm. फोकस सबसे ज्यादा रहा वो इंडिविजुअल पे है। Hmm. इंडिविजुअली यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए कि Hmm. अगर आप एक बहुत एनालिटिकल टाइप ऑफ प्रोफेशनल है, तो आपको अपने ट्रांजैक्शन में एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए जहां पे टाइम मिले आपको हर तरीके से पूरे ट्रांजैक्शन को इवेल्युएट करने का। Hmm. तो अगर वो टाइम अवेलेबल है उस ट्रांजैक्शन में, या लेट से 10 में से 8 बार ऐसा हो पाता है कि आपको टाइम मिलता है बाय वर्च्यू ऑफ द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल, then you are pretty much fine. You are doing okay. You are justifying yourself as an individual. You are contributing, and at the end of the day, you are satisfied कि ठीक है, I have given my best, Hmm. right? क्योंकि वो एक जो थिन लाइन है कि जिस अमाउंट पे पीओ इशू हुआ, उस अमाउंट से 5%, 3%, 2% और नीचे क्लोजर हो सकता था। ये एक ऐसी चीज है जिसको टू बी ऑनेस्ट कोई आप बहुत ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते, Hmm. राइट। क्योंकि तभी वो नेगोशिएशन वर्ड है जहां पे सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हुई और उस ट्रांजैक्शन का क्लोजर हुआ। Hmm. तो
वहां पे ये चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि एज एन इंडिविजुअल आपका आपका अपने आप की परफॉर्मेंस का एक सेल्फ इवेल्युएशन अगर सेटिस्फैक्ट्री है, हम्म। तो फिर यू आर एट अ राइट स्पेस डूइंग अ राइट थिंग, बिकॉज बाय डिजाइन आपके पास हर ट्रांजैक्शन में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी इंटेंट बहुत पहले दिन से क्लियर है कि आई वांट टू सेल माय सर्विसेज एट द प्रीमियम प्राइस। हम्म। और आपकी बिल्कुल पोल अपार्ट एक्सपेक्टेशन है कि यू आर ब्रिंगिंग इन समबडी ऑन बोर्ड हम्म। टू ब्रिंग द वैल्यू फॉर मनी एट अ बेंचमार्क क्वालिटी। तो वो एक क्लियर कट हमारे काम में वो पहले दिन से लास्ट तक ये चीज रहने ही वाली है, राइट। बट विद टाइम एज एन इंडिविजुअल आपको अपने हर करियर के हर पड़ाव पे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मे बी आई एम डूइंग ऑसम जॉब, राइट, कि मेरे को आप 10 ट्रांजेक्शन दे दो, हम्म। मैं उनमें आई विल आउटशाइन। पर मे बी मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जिनसे भी मेरा मिलना हमारे प्रोक्योरमेंट फ्रेटर्निटी से हुआ है कि जैसे ही मैनेजरल रोल आया, जहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी अपनी टीम के 3 लोग और उनको असाइन हुए 5-5 ट्रांजेक्शन, यानी 15 ट्रांजेक्शन उनके और 5 ट्रांजेक्शन आपके, आपकी अकाउंटेबिलिटी वो 20 ट्रांजेक्शन की एट स्ट्रेच रहने वाली है, जहां पे कंपनी के थॉट प्रोसेस से अलाइंड क्वालिटी और प्राइस मिले। तो शायद एज अ मैनेजर आप स्ट्रगल करने लगे, हम्म। क्योंकि इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ स्किल जहाँ पे आप बैठ के एक लैपटॉप लेके पूरा दिन 8 घंटे, चाहे घर से करें ऑफिस से करें, निकाल दिए, और आपका सिर्फ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और ब्रिलियंस वहां पे काम आ रही है, और यू आर डूइंग वेल, और लॉन्ग टर्म में भी आप उसी ढंग से आप काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कॉरपोरेट में हमारे काम में तो स्पेशली आपका मैन मैनेजमेंट, आपकी पीपल स्किल्स विल ऑलवेज बी ए टेस्ट, इररिस्पेक्टिव वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो। इंटरनल हुआ आपका लाइन ऑफ बिजनेस, आपकी मैनेजमेंट। तो जैसे जैसे हम अपने करियर में ग्रो करते हैं, हमारे लिए टू बी ऑनेस्ट एक टाइम के बाद अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना शायद एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बशर्ते एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को मैनेज करना। क्योंकि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के तो पैरामीटर सेट है, उसको एक प्राइस पे एक सर्विस देनी है और वो शायद ठीक से हर बार दे भी दे। हम्म। पर इंटरनली आपके पास आपकी 5 लोगों की टीम है, उनसे आपकी रिलेशनशिप कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट को कहाँ प्लेस करता है अपने पूरे इकोसिस्टम में, और आपके जो की स्टेक होल्डर हैं उनका पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आप उनसे कितना अलाइन होते हैं। हम्म। इन चीजों का एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल बहुत ज्यादा विद टाइम एज वी ग्रो बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट आता है, हम्म। जिसको जितना जल्दी हम अपने थॉट प्रोसेस में अलाइन करते चले उतनी हमारी ग्रोथ टू बी ऑनेस्ट अच्छी होगी। ओके। क्योंकि शायद एक आइडियल सिचुएशन कभी ना बन पाए कि आपको एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले, एक ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास हर बार 3 सप्लायर हो। हम्म। ये बड़ा आइडियल सिचुएशन है जो कि मैक्सिमम टाइम आपके पास नहीं होंगी। तो हम्म। यू हैव टू इंश्योर कि एज एन इंडिविजुअल अगर आप यू फोर्सी कि अच्छा आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो अगेंस्ट इवन माई पर्सनैलिटी, अगर इस स्किल को मैं डेवलप करता हूँ कि एज सुन एज आई एंटर द ऑर्गेनाइजेशन देर आर लॉट ऑफ आईज ऑन मी कि डिपार्टमेंट मुझे देख रहा है, लाइन ऑफ बिजनेस को एक रिक्वायरमेंट है, मेरे मेल बॉक्स में 50 ईमेल हैं जिसमें 5 मेरी हैं और बाकी टीम से रिलेटेड हो सकती हैं जिसमें आप सीसी में हो या टू में हो। तो ये विद ग्रोथ इनिशियल करियर में तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में तो बहुत क्लियर कट रहता है कि आपका ट्रांजेक्शन है, आपने क्लोजर किया। पर इफ यू फोरसी अ ग्रोथ इन सप्लाई चेन एंड दैट टू इन प्रोक्योरमेंट डोमेन, तो ये आपको समझना और अपने आप के साथ उस चीज को एक कंफर्ट देना जरूरी है कि हम्म। दिस वुड बी दी रोड मैप इन अहेड, जहाँ पे पहले 5 साल हो सकता है मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, अगले 5 साल
मिडल मैनेजमेंट हो, उसके बाद एनी विच वे आप ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में होगे जहां पे आपको एज अ प्रॉफिट सेंटर कंसिडर किया जा रहा है, नॉट द कॉस्ट सेंटर, और आप हर की डिसीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आपके साथ मिलके टाइमलाइन डिस्कस की जा रही है, हम्म, आपके साथ सारी चीजें हो रही है, और आपकी टू बी ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी मल्टीफोल्ड जा रही है, जहां पे आपकी एक कमिटमेंट आपकी रॉन्ग फोरसाइटनेस जो है वो उसको खत्म कर सकती है। हम्म, और एक इम्पॉर्टेंट चीज के मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में रहा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टाइम बिताएं, अगर टू बी ऑनेस्ट आपने 50 ट्रांजेक्शन देखे हैं और उनमें से कहीं ना कहीं 45 बहुत स्मूथली निकल गए, पर वो जो 5 ट्रांजेक्शन है, अगर वो आ, किसी भी वजह से, चाहे वो वेरिएबल रीजन हो या आपकी अपनी जजमेंट ऑफ एरर की वजह से अगर वो गलत चले जाते हैं, तो फिर यू हैव टू इंश्योर के यू शुड बी ब्रेव एनफ टू एक्नॉलेज के हाँ गलती हुई है, क्योंकि होती है, नेगोशिएशन में मतलब बोल रहे हर हो ना काम में। आपकी, whenever you do negotiation, right? हाँ हाँ, नेगोशिएशन या एंड टू एंड आपके लिए नेगोशिएशन एक ट्रांजैक्शन के आपके मेल बॉक्स में हिट करने से क्लोजर तक के बीच की जो जर्नी है, Okay. वहां किसी भी एस्पेक्ट पे गलती हो सकती है। कि इमेजिन कि आपको आईटी टीम ने कॉन्फ़िगरेशन दी है, आपने आगे कट कॉपी पेस्ट डाली है, पर समहाउ कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। इमेजिन के Yeah. सप्लायर ने रीआइट्रेशन भेजा कि मैं ये दे पाऊंगा, आपकी आईटी टीम ये मांग रही है, और किसी वजह से 5-6 कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ हुई और कोई कम्युनिकेशन मिस हो गए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और हम्म, वहां पे एक ऐसी चीज आपके पास, आपके प्रिमाइस में आ जाती है जो आपकी लाइन ऑफ बिजनेस से अलाइन नहीं है, हाँ। तो वहां पे अब आप किस तरीके से रेक्टिफाई कर पाएंगे वो सिचुएशनल है। हो सकता है सप्लायर ना वापस ले रहा हो सकता है ले। वहां पे फिर अगेन आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि एक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल के लिए सप्लायर को वो हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखे इन हिज हेड, ऑल्दो हिज बॉडी लैंग्वेज ऑलवेज बी इन अ वे कि वो ड्राइविंग सीट पे है, पर इन इन हिज हेड फॉर यूजर Right. इट वुड बी वन ऑफ द ट्रांजेक्शन, और उनका काम होना चाहिए इवेंचुअली। एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बॉडी लैंग्वेज मैंने यूजर डिपार्टमेंट की देखी है कि उनका काम होना चाहिए, पर यू नो कि आपके पास साल में 5 बार इस सप्लायर से इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन के लिए होगा, जहां पे एज अ फैसिलिटेटर आपका रोल सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को इंडिस्पेंसिबल तरीके से कंक्लूड करने का है, क्योंकि यूजर को काम चाहिए, सप्लायर दे सकता है और आपने करवाना है। हम्म, पर मुझे ऐसा लगता है कि सप्लायर की वो इम्पोर्टेंस विद टाइम शायद समझ में आती है कि हाँ, ही इज एन एक्सटर्नल पार्टी, इट्स नॉट कि वो आपका सबॉर्डिनेट है, आपका टीम मेंबर है या आपका लाइन ऑफ बिजनेस है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पैरामीटर के लिए बाउंड है। हम्म, ये बात भी बहुत टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ आती है कि अच्छा यार, हियर इज समबडी हु इज एक्सटर्नल, पर उसकी इंपॉर्टेंस एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल आपके लिए इतनी, क्योंकि डिलीवरी आखिर में उस सप्लायर नहीं करनी है, जो कि इवेंचुअली इज बाइंड विद दैट कॉन्ट्रैक्ट और पीओ। हम्म। तो वहां फिर विद टाइम वो स्किल, अगेन स्किल स्किल पे ही बात आएगी कि वो स्किल टाइम के साथ डेवलप होती है। Right, right. No, no, no. You have summed it up very well, actually, because it's more about ecosystem in terms of skills as well.